नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम अश्विन कुमार है and I'm from Hyderabad, representing a company called S9 Consulting. आज मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जितनी भी है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये 100 स्लाइड्स की है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में आपसे शेयर करूँगा। क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ये सब के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, so let's go into the topic. So let's see what are the central government schemes which are there. So as we have seen for the next one, central government schemes, what is the basic fundamental information क्या है ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है, and this particular presentation is always it is directed to जितने भी सारे NGOs है, universities है and NSS departments है. It is very useful for them, and apart from that it's very useful for resident welfare associations. जितने भी ये schemes है ये पूरे they can take up and you can discuss with your concerned MP and MLA also. पहले ये schemes क्या है, इसका utility क्या है हम जानेंगे अब. ठीक है, so what is the first basic information? The government of India has social welfare and social security schemes for India's citizens, funded either by central government, state government or concurrently together. Schemes which are fully funded by the central government are referred to as central sector schemes. जितने भी schemes directly central government से आते हैं उसे CS बोलते हैं, central sector schemes. और जितने भी schemes जो भी funded by central government और state government together दोनों मिलकर है उसे centrally sponsored schemes कहते हैं, CSS. पहली बात CS, that is central sector schemes. Second one centrally sponsored schemes, जहाँ पर central government और state government दोनों की साझेदारी होती है. In the 2022 union budget, there are 740 central sector schemes or 65 centrally sponsored schemes. ठीक है, let's see what are those. In 2022, CSS numbered 65 with a combined funding of 4,42,781 crores, and ये 2023 में और बढ़ गया है. In 2022, there were 157 CS and CSS with individual funding over 500 crores. The schemes can also be categorized as flagship schemes. 10 flagship schemes were allocated 1.5 lakh crores, equivalent to $1.7 trillion by the Union Budget of India, in the Union Budget of India. Implementation of government schemes, हर एक scheme जो भी होता है, it varies from different locations, states, and factors such as evaluation, process, awareness, acceptability, and capability for the last mile implementation. So ये पूरा हम will discuss it in the last slide. Government bodies undertaking evaluation and audits including NITI Aayog, Ministry of Statistics and Program Implementation, and CAG, very important body. Please regularly visit the CAG website, that is Comptroller and Auditor General of India. They give you the updated information. जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा. और जितना भी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड नथिंग एल्स. आई एम ओनली शेयरिंग द नॉलेज, क्योंकि हमारे दोस्त, कई सारे दोस्त जो भी NGOs में काम करते हैं, उन लोगों ने उनसे मुझसे पूछा था कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है. सो जब इसीलिए मैंने ये पावरपॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार किया है, सच दैट जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जितने भी NSS डिपार्टमेंट्स है, जितने भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है, जितने भी NGOs है, so they can use this particular presentation and they can share it, and especially university NSS departments, if you can tie up with all the students and take this to the grassroots levels, especially आपके आजू बाजू यूनिवर्सिटी के आजू बाजू जितने भी सारे ग्रामीण villages है, please take there, show them what are the schemes which are available, और ये schemes कैसे काम कर रहे हैं कि नहीं आप भी check कर सकते हैं. Take the feedback directly from the people. That is why it is very important to take this entire presentation directly to the rural areas of India, right? So this is just an information, इसलिए disclaimer मैंने दिया है. Yeah, I'm just sharing the information, nothing else. Let's go to the next slide. पहली स्कीम जो मैं बात कर रहा हूँ, ये स्कीम का नाम है अग्निपथ, जो आप सब लोग जानते हैं. ये it has been implemented on 14th June 2022, last year, 1 year. किसने किया? Ministry of Defense, again in the year 2022, Defense. And for recruitment of soldiers,
below the rank of commissioned officers into the three services of the armed forces. The Agnipath scheme will be the only route for recruitment into the military. All recruits will be hired only for 4-year period. Personnel recruited under this system are called as Agniveers with the military rank. So जितने भी youngsters है, youth है, they can also apply for this particular scheme. That the scheme is called Agnipath scheme. So let's go to the next one. नेक्स्ट वन होता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC. ये लॉन्च किया गया 2023 में. द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज फाइनेंस. MSS स्कीम was launched by Government of India in the budget 2023. किसके लिए? For women and girls of India. Next thing is PM Poshan Shakti Nirman Abhiyan. PM Poshan, POSHAN, Poshan. Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment. Prime Minister Nutrition Power Building Scheme. ये लॉन्च किया है MOWCD, that is Women and Child Welfare Department. That जितने भी abbreviations है, you can go to Google and check that, which I will not be reading further. Only thing is वो कौन सा department, कौन सा ministry ने launch किया है. Year कब है? 2021. किसके लिए? Health और education के लिए. What is the importance here? Revamped version of 1995 midday meal scheme. Madhyan Bhojan Yojana to provide free lunch to school children. Financial outlay in 2022 was 10,233 crores, equivalent to $110 billion. Poshan Abhiyan was launched in 2018, grouped under the umbrella scheme Saksham, Anganwadi and Poshan. It is expanded, aims to include stunting under nutrition, anemia and low birth weightage. So you have we can get it under PM Poshan scheme. The next scheme that we are trying to talk, especially it is directly linked to all the teachers. Strengthening teaching, learning and results for states. This is called as STARS. Again, it has been launched by Ministry of Education, launched to 2020. Purpose education to improve school education in 6 states covering 10 million teachers. Financial support is given by World Bank. This is a continuation of GOI World Bank efforts since 1994 towards the same goal implemented through Samagra Shiksha Abhiyan. Next. Swamitya Yojana, survey of villages, Abadi and mapping with the improvised technology in village area. This is done again by rural development. Why? ये किस लिए करते हैं? To help in mapping the properties in village with the help of drones. Aims to help the reduce disputes over property. The portal will help in making it easier for villagers to avail bank loans. The main purpose क्या है इसके लिए? तो मैपिंग द प्रॉपर्टी, जितने भी सारी प्रॉपर्टीज है ग्रामीण एरियाज में, उसको ड्रोन्स जो कहते हैं नया टेक्नोलॉजी वेपन्स रहते हैं ना, ऊपर से ऐसे फ्लाई करते हैं, वो पूरा कैमरा कैप्चर करता है. सो ये ड्रोन्स को यूज करके कौन सी प्रॉपर्टीज की बॉर्डर्स क्या है पूरा मार्किंग करके ऑनलाइन में अपडेट करते हैं. तो दैट इज वाई जितने भी सारे ग्रामीण एरियाज है, विलेजेस है, वहां पर ये ड्रोन्स यूज करके ये दिस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा वो द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू अपडेट द डाटाबेस. ठीक है जी. Kindly excuse me if my English is more. जितनी भी सारी जितना सारे हिंदी आती है, I am trying to share it as much as possible in Hindi. Next slide. Garib Kalyan Rojgar Abhiyan, Poor Welfare Employment Scheme. Again ये this is coming under 12 ministries. जितने भी सारी NGOs है, अगर आपके goal vision में है to work for the poor and the needy people, this is one thing. To give employment for the poor people. Employment campaign for the poor following coronavirus pandemic covering 12 ministries and 6 states. Location, it was launched on 20th June 2020 and it ended on 22nd October 2020. You can still, if it is available or not, please check with the different ministries. अगर available है तो please apply कीजिए. Lot of schemes जितने भी है, they are all being subsumed बोलते हैं. Subsumed is merged into one. और थोड़े discontinue भी हो गया है. So please check in the website. I'm just giving you the list of information. Okay. So let us go to the next slide. So what is the next slide is all about? So my dear friends, very important to understand. Okay. The next slide is PM Matsya Sampada Yojana, that is PMMSY, PM Fish Resources Scheme. This is Ministry of Fisheries में आता है, Fisheries Department, launched in 2020. क्या है? Nationwide welfare measures for farmers in the fisheries sector for the period of 2020 to 2024. Estimated allocation is 20,050 crores, roughly $220 billion. So this is basically to all the Gangaputras
So please, all those who are there in the Gangaputra community, fisheries community, please check this scheme. If it is still available with your respective NGOs or within their respective departments, please apply for this scheme. And if it is implemented successfully, it has been closed, please verify whether this scheme has been implemented correctly or not. जितने भी ये स्कीम अगर ये बंद भी हो गया है तो जस्ट जो जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो जो देख रहे हैं प्लीज चेक करिए कि स्कीम ठीक तरह से इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, और वट एवर रिपोर्ट जो भी है गिव इट टू द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड सेंड इट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, पीएम फार्मर्स ट्रिब्यूट फंड. So again it is coming under the Department of Agriculture. The income support of 6,000 equivalent to 6,700 per year to eligible farmers to direct benefit transfer DBT. जितने भी किसान है, किसान भाई है, तो बहनों है, उन सबको 6,000 रुपये 6,700 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पीएम फंड से निकलता है आप सभी के लिए. चेक कर लीजिए अभी भी हो रहा है नहीं, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है वेरी गुड, आपका फीडबैक दीजिए. अगर खत्म हो गया तो कैसा लगा कि कितने को मिला कितने को नहीं मिला उसका भी आप फीडबैक दीजिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास. नेक्स्ट जल जीवन मिशन, वाटर लाइफ मिशन, ये होता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आता है. दिस इज एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम विच बिगैन इन 1972 और ये 1972 में स्टार्ट हुआ था. रिस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम इन 2009, फिर उसका नाम बदला गया 2009 में. Then to provide water to each rural household through individual taps, financial outlay in 2022 roughly around 60,000 crores consists of हर घर नल से जल scheme. ठीक है, this is going to be cost on 60,000 crores and this will be coming under Ministry of Rural Development. Next scheme अटल भूजल योजना, अटल जल, अटल ग्राउंड वाटर स्कीम. अगेन ये वाटर डिपार्टमेंट है. वर्ल्ड बैंक में इस फंडेड, वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है 50-50 टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विद फोकस ऑन पंचायत. जितने भी पंचायत से, पंचायत में जितने भी पानी है जो जमीन के नीचे पानी है उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये स्कीम लागू किया गया है. Implementation in 7 states between 2020 to 2025 with initial funding of 6,000 crores, 6,000 करोड़ दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक में पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एक बार देख लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर है तो यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर विलेज. नेक्स्ट पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. दिस इज कुसुम स्कीम, पीएम एनर्जी सिक्योरिटी एंड अपलिफ्टमेंट कैंपेन, Department of Agriculture, for the installation of solar pumps and other renewable power plants across the nation targeted towards farmers, towards Paris Agreement targets for renewable energy. जितने भी ये renewable energy बोलते हैं, climate change जितना भी हो रहा है, मैं आप सभी को यही निवेदन करता हूं, अगर हर घर में अगर हम सोलर रूफ पैनल्स लगा लेते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, तो खर्चा तो होगा ही, बट अगर हम ऊर्जा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है अगर हम हर एक घर अपने घर में ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और प्रोड्यूस करके हम अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे सकते हैं. तो अगर आपके पास बजट है तो प्लीज इंप्लीमेंट सोलर रूफटॉप पैनल्स. और जब आप सोलर रूफटॉप पैनल्स इंप्लीमेंट करते हैं देख लीजिए उसको ऑफ ग्रिड नहीं ऑन ग्रिड लगाना चाहिए. ऑन ग्रिड का मतलब होता है क्या? ऑन ग्रिड का मतलब होता है आप खुद आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं. सोलर पैनल जब सन रेस उसके ऊपर गिरता है तो दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वो इलेक्ट्रिसिटी जाके स्टोर होता है. जब वो स्टोर होता है, जब हम जो जिधर भी स्टेट से, अगर मैं तेलंगाना से हूँ, मैं तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मैं यूज करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी और मैं भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ. जब मेरे एक महीने के बाद जो करंट का बिल आता है तो क्या करते हैं वो मैच करते हैं, जितना हमने प्रोड्यूस किया वो एक्सपोर्ट में ले लेते हैं, जितना हमने यूज किया वो इंपोर्ट में लेते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिल को मैच करके फाइनल बिल देते हैं. इसका कॉस्टली होगा इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपके पास बजट है लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है. हर एक ग्रामीण प्रांत में हर एक घर के ऊपर, हर एक घर के ऊपर, राइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, अगर हम सोलर पैनल्स लगाएंगे वी विल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग. अगर हम हर एक घर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो भी सूर्य किरण से, हमको मालूम है 85% ऑफ एंटायर एंटी वी आर हैविंग लॉट ऑफ सन. अपने पूरे देश में 85% इज सन है एक्सेप्ट फ्यू हिली स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, दैट इज एक्सेप्ट वो छोड़ के बाकी पूरा तो सूर्य किरण तो आता ही है. तो व्हाई कांट वी प्रोड्यूस दैट? सो प्लीज फोकस ऑन सोलर एनर्जी. बजट पैसे तो लगेंगे,
डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग स्कीम्स फ्रॉम दिस थिंग। अगर आपका एमपी और एमएलए आएगा तो आपसे उनसे निवेदन करिए कि आपके पूरे ग्रामीण प्रांत में, नहीं तो आपके कम्युनिटी हॉल में जितने भी है वहां पर एक सोलर पैनल का कंप्लीट सिस्टम लगा दीजिए। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वो जो जितने भी यूज करते, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हो या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस हो, वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करते हैं। अगर हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग और स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे, देख लीजिए कितना सेविंग होगा। और वो भी ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड नहीं। वी कैन नॉट यूज सोलर पैनल, सोलर पावर लाइक एन इन्वर्टर। हाँ, हमारे इन्वर्टर भी जरूरत है, बट इन्वर्टर, सोलर पैनल, ऑन ग्रिड, ये याद लगा लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्कीम, पीएम श्रम योगी मंथन। दैट इज दिस इज कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड मंथली पेंशन एंड 60 थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड ये स्कीम ज्यादातर एलआईसी जो है वो स्कीम इंप्लीमेंट करता है कि ताकि पेंशन मिले सभी को। तो दैट इज वाई ये स्कीम है, दिस इज कॉल्ड पीएम श्रम योगी मंथन। तो प्लीज देख लीजिए, एलआईसी के वेबसाइट में भी जाइए एंड प्लीज चेक दिस, अगर ये स्कीम है या नहीं। अगर है, आप अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा, फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आता है, फॉर फार्मर्स वेलफेयर थ्रू क्रिएटिंग ए प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम फॉर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स। consists of sub schemes such as price support scheme PSS and price deficiency payment scheme PSS और PDPSP इसका लागू होता है। हर एक मार्केट यार्ड में जाके इसका give the awareness about this particular scheme. Please read about this scheme in the website for the Ministry of Agriculture. I'm requesting all the NSS department, especially students from agricultural background, please go to the website, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेबसाइट, जितने भी डॉक्यूमेंट है पूरे पढ़ लीजिए स्कीम के बारे में। अगर इफ इट इज स्टिल इन फोर्स, प्लीज गो एंड इम्प्लीमेंट इट। आप अगर आपके विलेजेस में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पेशली टू योर फादर, टू योर अंकल्स, योर रिलेटिव्स, एवरीबॉडी, यू विल बी गिविंग द बेस्ट बेनिफिट टू देम। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्कीम होता है आयुष्मान भारत योजना। आप सभी को जानते हैं, दैट इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीपल्स हेल्थ स्कीम। Again, it's coming from Ministry of Health. Ayushman Bharat National Health Protection Scheme aims to provide free access to healthcare for 50 crore people in the country, implemented across 3 states and union territories. By July 2021, Ayushman cards have been issued to 16.14 crores. By March 2022, hospitalization under scheme have crossed 30 million. So ये स्कीम चल रहा है अभी। अगर आपके यूनियन टेरिटरीज और 3 स्टेट्स में लागू है तो प्लीज अप्लाई फॉर दिस। दिस इज कॉल्ड आयुष्मान भारत योजना। जितने भी मैं स्कीम्स यहाँ बता रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ विच इज द डिपार्टमेंट कंसर्न। गो टू द वेबसाइट, गूगल में टाइप करिए, वो वेबसाइट में लेगा। अगर स्कीम है कि नहीं चेक कर लीजिए, अगर है तो अप्लाई कीजिए। अगर हो गया है, द स्कीम हैज बीन क्लोज्ड, एवेल्युएट कीजिए किस तरह से स्कीम इंप्लीमेंट किया गया, व्हाट इज द बेनिफिशियरी, टेक फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल इन द रूरल एरियाज। दिस एंटायर इज कमिंग फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी. So we need to be accountable. We have to make the government accountable. We have to help the CAG, Comptroller and Auditor General, better. Every university, every departmental head should first focus on this schemes being taken to the grassroots level. I'm not asking you to spend, मैं ये नहीं कह रहा कि 26 घंटे यही स्कीम पे काम करिए, नहीं सर, नहीं मैडम। हफ्ते में 1 घंटा, हफ्ते में 1 दिन दीजिए ना। आपकी यूनिवर्सिटी के पीछे जितने भी सारे ग्रामीण प्रांत है, विलेजेस है, एक बार विजिट तो कीजिए आपके स्टूडेंट्स को लेकर, उनका हाल क्या है पूछिए। ये स्कीम्स वो उनको अवेयरनेस है कि नहीं, पता है कि नहीं, पूछिए। अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है, वेरी गुड। अगर नॉट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड, क्यों नहीं? जानकारी नहीं है तो जानकारी दीजिए ना। हफ्ते में 1 दिन, rest of the time please spend in your university, please spend time in your labs, but at least give 1 week a day for your country, for agriculturists. Let's go to the next slide. The next slide is Samagra Shiksha Abhiyan, which all of you know, National Education Mission implemented in 2018, education to improve overall effectiveness of schools from pre-nursery to class 12th, K-12, kindergarten से लेके 12th class तक, to improve the teaching capabilities of the teachers as well as the students. जहाँ तक उन्होंने find out किया है, lot of students cannot do maths properly. ज़्यादातर लोगों को अपनी मातृभाषा हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है।
अगर आपके बच्चों को ग्लोबल मैनेजर बनाना है, ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, जितनी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है उतनी ही अपनी राष्ट्रभाषा भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, एवरीथिंग। आप जहाँ का भी कहीं कर भी आपका ट्रांसफर्स होता है, लोकल भाषा में सीखने के लिए ट्राई करिए, प्रयत्न करिए। जिधर भी जाते हैं आप, यू आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया टू वेस्ट इंडिया, प्लीज लर्न द लोकल लैंग्वेज। लोकल कल्चर क्या है समझने की कोशिश करिए। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट वन। पीएम जन विकास कार्यक्रम, दैट इज पीएम पीपल प्रोग्रेस दिस थिंग, ये 2018 में लगाया गया। डेवलपमेंट स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ? ये 2008 में स्टार्ट हुआ। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरिया। जितनी भी माइनॉरिटीज है वो माइनॉरिटीज एरियाज कहाँ पर है, उनका एजुकेशन कैसे चल रहा है, तो गेट द फीडबैक फ्रॉम दैट। यहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट किया गया। अभी तक है या नहीं मुझे पता नहीं, आप वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल विलेज कैंपेन, दैट इज कमिंग फ्रॉम 2018 में स्टार्ट किया है। इट इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू स्ट्रेंथन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड सपोर्ट देम टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, इट हैज बीन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। और इसका अगर आप गूगल में जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टाइप करेंगे तो आपको फुल वो इमेज आ जाएगा। हर घर में पानी होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरा स्कीम्स जितनी भी है, जो हर हर रोटी कपड़ा मकान ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं, रोड्स ठीक तरह से है कि नहीं, बारिश के सीजन में कैसे चल रहा है, और जितने भी किसान लोग हैं उनका खेती बाड़ी कैसी चल रही है, ये पूरा स्कीम्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आज भी लागू है। इनका लक्ष्य क्या है, ये पूरा क्या है, आप टाइप करेंगे, यूनाइटेड नेशंस ने दिया है और पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के लिए दिया है। कौन सी देश किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यही यूनाइटेड नेशंस देख रहा है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी देख रहा है। और ठीक से रहते वो देश इंप्लीमेंट करते हैं, उसको नेक्स्ट फेज ऑफ फंडिंग भी मिलता है। ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, हर एक विलेज की बात है, हर एक ग्रामीण प्रांत की बात है ये। ठीक है जी, सो प्लीज चेक दैट। नेक्स्ट, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम्स, ये अगेन इट इज लॉन्च्ड इन 2017 एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये this particular scheme is to enable 10 private and public institutions to attain world class academic and research facilities, aims to create institutes of eminence। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज है, 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में दिस फंडिंग हैज बीन डन टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, ठीक तरह से रिसर्च हो। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज across India to focus on creating new products that can benefit rural India. Always your research should be directed towards development of rural India. And since ours is an agricultural economy, please focus to give new products, new technologies to our agriculturists. आजकल जो ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, जितने भी एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, ग्रेट, फैंटास्टिक, बट ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। आजकल बहुत सारे लोग दे आर क्रिएटिंग न्यू एप्स आल्सो, मोबाइल एप्स, टिक सच दैट वी कैन कनेक्ट ऑल द मार्केट यार्ड्स। जितने भी मार्केट यार्ड से कनेक्ट करेंगे, द प्राइस भी मालूम हो जाएगा हर एक किसान को, उसके मोबाइल पर पूरा प्राइस आज भी आ रहा है, देख लीजिए, थोड़े एप्स है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम खेलो इंडिया, ये मेरा फेवरेट स्कीम है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। कब? 2017 में। स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पॉन्सरशिप एक्सेलेंस, कॉम्पिटिशन सच एज खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, जनरल फिटनेस ऑफ द पॉपुलेशन। पता नहीं है कहाँ तक ये स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, पर हर एक म्यूनसिपैलिटी में, हर एक ग्राम पंचायत में इंप्लीमेंट होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमारे जिला, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फास्टेस्ट रनर कौन है, फास्टेस्ट गर्ल रनर कौन है, फास्टेस्ट मेल रनर कौन है। नॉट ओनली इन एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स, हर एक इसमें जितना खेलेगा इंडिया उतना स्वस्थ बनेगा इंडिया। ये आप सभी को मालूम है, मैं कुछ नए बात नहीं बोल रहा हूँ। बच्चों को ज्यादा खेलना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे। और आजकल क्या हो रहा है आपको मालूम है, हर एक घर में। नेक्स्ट स्कीम, कृषोन्नति योजना, दैट इज अगेन फ्रॉम एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। ये स्कीम को सब दे हैव put it under a single scheme. Subsuming means merging into under different schemes. Then very important, PM I3 वंदना योजना, मैटरनिटी सपोर्ट स्कीम। ये 2017 में स्टार्ट किया गया, किसके लिए? मदर केयर के लिए, हर एक महिलाओं के लिए।
लॉन्च्ड एज द इंदिरा गांधी मैत्री सहयोग योजना इन 2010, वो फिर 2017 में नाम बदला गया है. A cash incentive of not less than 6,000, equivalent to 6,300, that is to pregnant or lactating women. So please take this, especially the women, girl students who are watching this video. Please go and check this particular in the website of Ministry of Child, Women and Child Development. If the scheme is still available, please go and see that. Enroll all the new mothers who are their pregnant mothers. Tell them about this particular scheme. It is our responsibility to protect our mothers. नेक्स्ट पीएम उज्ज्वला योजना, आप सभी तो ये जानते हैं, 2016 में स्टार्ट किया गया. एनर्जी, हेल्थ और पॉवर्टी. लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कलेक्शंस टू वुमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बोलते हैं. बिलो द पॉवर्टी लाइंस जितने भी महिलाएं हैं उनको ये फ्री एलपीजी सिलेंडर देने का स्कीम है. व्हाइल द स्कीम मेनली अटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेंडर, द यूसेज हैज बीन इन क्वेश्चन. कितने लोग कैसे यूज कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं उनको बिलो द पॉवर्टी फैमिली लाइन्स को दे रहे हैं, बट जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है वो स्कीम तो अवेल कर रहे हैं, वो जाके बाहर भेज रहे हैं. तो ये मिसयूज तो होता ही रहता है भारत में. तो इसके ऊपर पाबंदी कौन लगा सकते हैं? खुद. सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट एट द यूनिवर्सिटी लेवल, नेक्स्ट एट द एनजीओ लेवल, नेक्स्ट एट द एनएसएस डिपार्टमेंट लेवल. नेक्स्ट स्लाइड. पीएम फसल बीमा योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्रॉप इंश्योरेंस है, 2016 में स्टार्ट किया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में. ये स्कीम जो है, जितने भी अगर बारिश होंगे, बारिश नहीं होंगे तो खेती बाड़ी ठीक तरह से नहीं चलेगी, तो ये सबको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम ले आया गया. पता नहीं कौन से कितने कितने स्टेट्स में इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जरा चेक कर लीजिए. कितने किसानों को मालूम है कि ये पीएम फसल बीमा योजना है कि नहीं. ये फसल बीमा योजना क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पैसे देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देना पड़ता है. और जितने भी अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनके स्टेट गवर्नमेंट के आपके जो एमएलए है और एमपी है उनसे बात करिए, सर हमारा फसल बीमा योजना कहाँ गए, आप क्यों नहीं फंडिंग करते हैं. नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया. ये स्टैंड अप इंडिया होता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है. क्या है ये, क्या है, लोन्स. जो जितने भी लोन्स देते हैं, किसके लिए देते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर ग्रीन फील्ड एंटरप्राइजेस. लोन्स कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन, या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. ये किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के लिए है. बाय जुलाई 21, 1.16 लाख लोन्स हैज बीन डिस्पर्स्ड. करीब करीब अब 25,000 करोड़ का लोन्स दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू दिस स्कीम. और 81% of the women by 2022 have availed this particular loan. नेक्स्ट नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट. ये वाटर डिपार्टमेंट से आ रहा है. क्या है, मल्टी प्रॉन्ग प्रोजेक्ट टू इंप्रूव हाइड्रोलॉजी रिलेटेड प्रैक्टिसेस, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड. ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप AWP provides technical assistance. The hydrology project started in 1995 was expanded through the National Hydrology Project. Hydrology project is to develop the groundwater level, especially we have tied up with Australian Water Partnership. अभी तक है कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं, चेक कर लीजिए, because it was launched in 2016. नेक्स्ट पीएम कृषि सिंचाई योजना, दैट इज पीएम एग्रीकल्चर इरिगेशन योजना. लॉन्च कब है, 2015 में लॉन्च किया गया. मल्टी प्रॉन्ग स्कीम फोकसिंग ऑन इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू इरिगेशन सपोर्ट एंड बेटर प्रैक्टिसेस. इन 2022 फाइनेंशियल आउटले कितना, 10,000 करोड़ था. ये पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विज्ञान स्कीम के अंदर आता है. एक बार चेक कर लीजिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि ये दिस विल बेनिफिट लॉट ऑफ किसान, एग्रीकल्चरल फैमिलीज. ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. पीएम मुद्रा योजना, पीएम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से करा है एंड दिस इज कमिंग इन कौन से साल में, 2015 में स्टार्ट किया गया. मुद्रा इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग स्मॉल बिजनेसेस. और जितने भी छोटे छोटे बिजनेस है, व्यापारी है, उन सबको ये मुद्रा लोन्स दिया गया है. एक बार आपके बैंक मैनेजर से मिल लीजिए, पूछ लीजिए अगर आप अवेलेबिलिटी है, आपका कंपनी जो भी है वो मुद्रा लोन के लिए अवेलेबल है कि नहीं, चेक कर लीजिए. और इम्प्लीमेंट किया गया, एज आई सेड, चेक कर लीजिए. सेटिस्फाइड, फीडबैक तो दीजिए. नॉट सेटिस्फाइड, फीडबैक दीजिए. किसके लिए, किसको देना चाहिए फीडबैक, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को दीजिए. इस स्कीम का, बिकॉज उनको तो मालूम होना चाहिए ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, किधर हुआ, किधर सही तरह से हुआ, किधर सही तरह से नहीं हुआ. ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन.
ये अगला स्कीम जो है वो स्मार्ट सिटीज मिशन है. दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन 2015. Redevelopment, retrofitting greenfield development of 100 cities. Large diversity in success of implementation. यहाँ पर मुझे एक छोटी सी सजेशन है. इस देश में चाहिए स्मार्ट विलेजेस program. So more than smart cities, smart villages program is very, very important. Kindly take this message to your concerned MP and MLA. Let us go to the next one. Digital India, fantastic. 2015 डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर आप जितने भी लोग हैं गूगल पे फोन पे जो भी यूज कर रहे हैं पेटीएम, इट्स ऑल कनेक्टेड टू डिजिटल इंडिया. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग. कृपया करके ध्यान सावधान पर रखिए. जिधर भी आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, सेफ्टी देख लीजिए, एंटीवायरस लगा लीजिए. और जितने भी आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं वहां पर HTTPS होना चाहिए. HTTPS है तो दैट्स अ सेफ लिंक, सिक्योर्ड लिंक. तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये काम कर लीजिए. जितने भी डिजिटल इंडिया डिजिटल बैंकिंग है, everywhere, every campus, every rural village has to be digitized. Of course, I'm sure most of the market yards are also digitized right now. Next. Faster adaptation and manufacturing of electric and hybrid vehicles of India scheme. ये FAME 2015 में लॉन्च किया गया. ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड सिक्योरिटी. ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के माध्यम 2020 में शुरू किया गया है. That is to create lot of electric vehicles because we don't want to depend on petrol this thing, so we have to create lot of electric vehicles. और जितने सारे electric vehicles launch किए गए, ज़्यादातर 50% तक वो सीधा सक्सेस तो नहीं हुआ है. I think we are still in the process of reinventing it, so please check before you buy any electric vehicle. But a lot of innovation is happening in a lot of electric vehicles and especially hybrid vehicles, combination of petrol and electric, वो भी आ रहे हैं अभी. नेक्स्ट PM आवास योजना ग्रामीण. सो ये इधर होता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से आ रहा है. ये रूरल हाउसिंग, ग्रामीण एरिया के हाउसिंग. ओरिजिनल फॉर्म ये 1985 में शुरू किया गया. इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल पुअर फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस. जितने भी ग्रामीण लोग में गरीब लोग हैं उनके लिए घर बनाने के लिए व्यवस्था किया गया है. ये जनरेट्स इनकम एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. सैम्पल हाउसिंग डिजाइन जितने भी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास है और IIT दिल्ली में भी है. IIT दिल्ली में आइए, मिलिए द कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, वो पूरा आपको बता देंगे PM आवास योजना क्या है, कैसी तरह के घर बन सकती है या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट होता है PM आवास योजना अर्बन एरियाज. जितने भी शहर में वो सेम थिंग PM आवास योजना है. टू एनेबल बेटर लिविंग स्पेस एंड ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर पीपल फॉर सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट. ये स्लम फ्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं. जितने भी स्लम्स है वो पूरा उनको ठीक तरह से बेटर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है. अगर जितने भी लोग आज स्लम्स में रहते हैं बहुत बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी, ये स्लम्स में भी वेरी इंपॉर्टेंट इज द सैनिटेशन एंड हाइजीन, ड्रेनेज आउटफ्लो कैसे. जितने जो भी घर बनता है, फर्स्ट टाइम आप घर बना रहे हैं, फर्स्ट थिंग आप देखना चाहिए आपका घर का ड्रेनेज लाइन कहाँ जा रहा है, पीने का पानी कहाँ से आ रहा है, आउटलेट कैसे, स्पेशली वेस्ट सेग्रीगेशन, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट आप कैसे सेग्रीगेट करते हैं. ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैनल एंड प्लानिंग में होता है. दिस प्लानिंग विल स्टार्ट वेयर, अपने घर में, अपने कॉलोनी में, चाहे आप शहर में हो चाहे आप ग्रामीण में प्रांत में रहे हो. नेक्स्ट स्कीम. द नेक्स्ट स्कीम अगेन वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट अटल पेंशन योजना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस दिस थिंग. 2015 में स्टार्ट किया गया पेंशन स्कीम. ओरिजिनल फॉर्म इसका 210 में Swalambhan Yojana, a pension program that allows people to make voluntary contributions within a certain range with a matching government contribution to receive the pension for the future. By September 21, कितने subscribers हुए? More than 3.5 crores. Very very important. इसका age limits है. If I'm not mistaken, the age limit is 18 to 50. So people who are between 18 to 45 start this Atal Pension Yojana. Link it to your bank savings bank accounts. The next scheme is PM Suraksha Bima Yojana. Very very important insurance के लिए. The accident insurance scheme is for individuals and can be renewed every year. Insurance जो आता है हर एक ईयर में ईयरली एक बार देते हैं हम. By May 2021 over 80,000 claims have been done, reimbursed. So very very important. जितने भी लोग हैं please take insurance. यहाँ पर मैं एक सिंपल सूचना देना चाहता हूँ सभी को, ध्यान से सुन लीजिए. अगर जितने भी युवा जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका नौकरी है
समझ लीजिए आपका तनख्वाह सिंपल सैलरी से स्टार्ट करता हो 10,000 है पर मंथ, उसमें से आप समझ लीजिए आपका सैलरी ओनली 7,500 है, 7,500। बाकी जो 2,500 है उसमें 1,500 जाएगा LIC के पॉलिसी में और 100 जाएगा आपको जनरल इंश्योरेंस, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। यही होता है। अगर आपका सैलरी 30,000 है, एवरी टाइम रिमेंबर 25% आपका सैलरी से डिडक्ट कर लीजिए टुवर्ड्स इंश्योरेंस। जो जितना भी बैलेंस 75% है आप वो प्लान कर लीजिए, कैसे स्पेंड करेंगे, क्या करेंगे। प्लानिंग होना चाहिए, बजटिंग होना चाहिए। ये आपको जितने भी अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है पूरा आपको शेयर करेंगे, सिखा देंगे भी। शेयर देम द एक्सेल फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट वन, this PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, that is coming from insurance. This life insurance scheme is for individuals, it can be renewed every year। LIC का स्कीम है PM जीवन ज्योति योजना। देन उन्नत ज्योति, दैट इज अफोर्डेबल LEDs जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए होता है। रिप्लेस द बचत लैंप योजना, reduces the cost of energy using composite fluorescent lamps। ज्यादातर ये वेरी सक्सेसफुल, इट हैज बीन गिवन एवरी म्युनिसिपैलिटी, एवरी ग्राम पंचायत। अगर आपके ग्राम पंचायत आपके म्युनिसिपैलिटी में नहीं आया हो, प्लीज चेक विद योर कंसर्न MLA, MP और योर वार्ड काउंसलर। PM कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू यूथ फॉर डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बाय रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, अंडरगोइंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। ये सर्टिफिकेट्स भी मिलता है ट्रेनिंग में। बहुत सारे ग्रामीण प्रांत में ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना विकास योजना के अंदर। सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ, जितना भी आपके युवा है आपके ग्रामीण एरियाज में, आस्क देम टू गेट एनरोल्ड, गेट सर्टिफाइड। और एम्प्लॉयबल स्किल्स, ये एम्प्लॉयबल स्किल्स होता है क्या? एम्प्लॉयबल स्किल्स होता है आप ठीक अंग्रेजी में ठीक तरह से बोल सकते हैं कि नहीं, इंटरव्यूज कैसे अटेंड करना चाहिए और इंटरव्यूज में आप कैसे आंसर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पूरा एम्प्लॉयबल स्किल्स के अंदर आता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दी स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के जो जॉब मार्केट है वो देख रहे हैं सिर्फ क्या, हाउ कैन बी एम्प्लॉय यू, एम्प्लॉयबल स्किल्स क्या है। आपका डिग्री इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है आपका डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ कैन आई एम्प्लॉय यू, व्हाट आर द एम्प्लॉयबल स्किल्स यू हैव। आप अपने आप को परखिए, अगर नहीं है तो ट्रेनिंग लीजिए। और ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहिए आपको मालूम है। Heritage City Development and Augmentation Scheme, Urban Development, the scheme seeks to preserve and rejuvenate the rich cultural heritage। जितने भी शहर है, जितने भी ग्रामीण प्रांत है, जितने भी पुराने पुराने बिल्डिंग्स है, उसको हम पूरा हेरिटेज डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपके एरिया में नहीं हुआ है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। Then comes Sukanya Samriddhi scheme, very very important। This is coming under Ministry of Women and Child Welfare Development. This is for girl child। The scheme under Beti Bachao Padhao primary ensures equitable share to girl child in resources and savings of a family in which she is generally discriminated against a male child। ये जितने भी गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां जो पैदा होती है, उनको जब 18 साल तक होते हैं, उनको पहले साल से लेकर 18 साल तक उनके जो माता पिता है हर साल कम से कम 500 रुपए उनके अकाउंट में डाल दीजिए। और ये मनी निकाल नहीं सकते जब तक वो लड़की 18 साल की होना हो। अब कम से कम 500, ज्यादा 1 लाख एक साल में। और समझ लीजिए आपने 1 लाख एवरी ईयर आपने डाला आपके बच्ची के लिए, वो 18 साल की हो जाएगी, तब उसको 18 लाख मिलेगा। आप जितना डाल सकते हो वो आपकी मर्जी, मगर आप पोस्ट ऑफिस जाइए, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि स्कीम चल रहा है। प्लीज आपके जितने भी नए नए बच्चे हो, लड़की हो, पैदा हो, उनके अकाउंट में एक अकाउंट ओपन कर दीजिए पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट, PM कौशल विकास योजना, सेम थिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज तक वो 20% प्लेसमेंट कर पाई। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, स्कीम का, एक कौशल योजना स्कीम पे 1 साल का आप 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, फिर 1 साल तक उस कैंडिडेट को, बच्चे को ट्रेनिंग देने के बाद मॉनिटर करना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ काम कर रहा है, उसका एवरी मंथ सैलरी स्लिप लेना पड़ेगा, फिर अपडेट करना पड़ेगा। अगर वो काम छोड़ देता है तो फिर इधर का जो स्कीम, ये क्यों ठीक तरह से स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि वी कैन नॉट मॉनिटर द यूथ। आज के यूथ को चेंजेस नीड्स, उनके घर के बाजू नौकरी चाहिए, और जहाँ पे उसका गर्लफ्रेंड काम करती है वहीं पे वो जाना जाता है। तो ये पूरे सारे इश्यूज है, सोशल इश्यूज आर देयर, but most important thing is how to do it seriously। even the central government should seriously think about changing the certain this thing parameters, because ज्यादा से ज्यादा एजेंसीज चाहिए to implement the skill development this thing। अगर इतने से ज्यादा रूल्स हो जाएंगे, 1 साल तक उसको मॉनिटर करिए। 1 साल क्या, आप पूछिए आप कितने पेरेंट्स हैं जो उसके बच्चे को 1 महीने तक मॉनिटर करने के लिए बोलिए, और यू आर आस्किंग वन एक्सटर्नल एजेंसी विच इज गिविंग ट्रेनिंग टू मॉनिटर देम फॉर 1 ईयर।
थिंक अबाउट दिस। एटलीस्ट जितने से ज्यादा एजेंसीज आएंगे टू ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा एनजीओ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स करेंगे, उसका प्रोग्राम फास्टर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट देने तक ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉयमेंट देने के बाद वो करता है नहीं करता, हाउ आर वी बॉदर्ड, हाउ कैन वी बी अकाउंटेबल? इट इज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। Let us go to the next scheme. There are a lot of things to discuss in skill development, but this is a point I want to share. I'm requesting all the central government people who are watching this, please change the rules for the skill development such that more and more NGOs come into the picture, more and more universities can take up this program, more and more NSS department people are involved in this particular thing. Next, PM भारतीय जन आयुष केंद्र, पीएम इंडियन पब्लिक मेडिसिन स्कीम। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी मेडिसिन बन रहे हैं, दवा बन रहे हैं, वो जेनेरिक मेडिसिन में स्टोर स्टार्ट करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम ये स्टार्ट किया है, ये 2015 में स्टार्ट किया गया। द स्कीम लॉन्च विद द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जेनेरिक मेडिसिन जो भी है वो पूरा नाम चेंज करके, नॉट द ब्रांडेड मेडिसिन, यू हैव टू गो शिफ्ट फॉर जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन स्टोर्स आपने देखा है पूरा देश भर में स्टार्ट किया गया अंडर द स्कीम। The next thing is Deen Dayal Antyodaya scheme. This was started by Ministry of Rural Development. 2015 में start किया गया skill development. Started as Ajivika National Rural Livelihoods Mission (NRLM) in 2011. Self-employment program to raise the income generation capacity of target groups among the poor. The scheme has been merged with another scheme named Swarna Jayanti Swarojgar Yojana. ये पूरा schemes है, बट एंड ऑफ द डे क्या है, जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब युवा है, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, स्किल देना चाहिए, और अगर वो खुद का एंटरप्राइज शॉप लगाना चाहते हैं तो बैंक से कैसा लिंक किया जाता है, ये पूरा इस स्कीम में बताया जाएगा। आप एक बार देख लीजिए स्कीम डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट थिंग, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। ये स्कीम स्टार्ट किया गया 2015 में by Ministry of Urban Development, preceded by Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNRUM), started in 2005. Water-based project to cover urban water ecosystem including taps, conservation, and reduce flooding. जिधर भी आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, जितने भी शहरों में आप देखिए पूरा फ्लडिंग हो रहा है, बिकॉज जितने भी नालाज ड्रेनेज सिस्टम हैज बीन कवर्ड, उसके ऊपर हर एक पॉलिटिकल लीडर का इलीगल एंक्रोचमेंट्स है। क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज निकाल सकते हैं? सब एक ही है। सो दे विल नॉट रिमूव दैट एंक्रोचमेंट्स। अगर आप ड्रेनेज को आउटफ्लो नहीं देंगे तो डेफिनेटली सिटीज में फ्लड होगा ही, है कि नहीं? सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड प्लानिंग जो भी करना चाहिए, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण प्रांत में हो, हम 25 साल आगे के लिए सोच के वहाँ वो टाइम पे पॉपुलेशन कितना होगा उसके मुताबिक प्लानिंग हम स्टार्ट करना चाहिए। आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, 25 साल आगे, एटलीस्ट 20 साल आगे के लिए प्लान करना चाहिए। यही होता है विजन डेवलपमेंट। किसी को विजनरी कहने से वो विजनरी नहीं बनता। Next, Swachh Bharat Abhiyan, started by our Prime Minister. Sanitation behavior started in 2014, the very first year of which Prime Minister Narendra Modi took over. A Central Rural Sanitation Program. ये कब स्टार्ट हुआ? 1986 में, ठीक है जी। 1999 इट बिकेम द टोटल सैनिटेशन कैंपेन। उसके बाद 2014 में उसको नया नाम दिया गया, उसका नाम था स्वच्छ भारत। Very very successful. It's started implemented with that. When Prime Minister Narendra Modi himself takes the broom and starts doing it, everybody has to follow. That is lead by example. That is what he did that time. So we should appreciate the Prime Minister there. Then comes PM Jan Dhan Yojana. That is Ministry of Finance and Financial Inclusion. National Mission for Financial Inclusion to ensure access to financial services. It replaced 2011 Swabhiman scheme. The scheme resulted in 36.86 crores in new bank accounts. हर एक व्यक्ति जो है, आज के बच्चे हो, बड़े हो, 18 साल से बड़े हो, सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक बैंक आईडी होना चाहिए, विच इज लिंक टू आधार कार्ड, विच इज लिंक टू पैन कार्ड एंड एवरीथिंग। सच आपको जब गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है, कोई भी बीच में दलाल नहीं होगा, स्ट्रेट आपके बैंक अकाउंट में गिर सकता है। समझ गई बात? सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ठीक तरह से यूज कीजिए। नेक्स्ट, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट फॉर रूरल, दिस थिंग मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ए स्कीम टू एंगेज रूरल यूथ। जितने भी गरीब युवा है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, उनको नौकरी भी ढूंढ के दिया जाएगा, मगर वो युवा जो भी है उस नौकरी में कम से कम 1 साल तक टिकना चाहिए। आपका आपसे कैसा वो कमिटमेंट रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए।
Next, Namami Gange scheme, that is Minister of Water Resources, clean and protect river Ganga. ये कब start हुआ? 2014 में. National Ganga Plan was launched in 1985, which integrates with river Ganga in a comprehensive manner. राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट बॉयज, ये कब स्टार्ट हो गया? 2014 में. मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट बॉयज एंड मेक्स देम सेल्फ रिलायंट, जेंडर सेंसिटिव एंड अवेयर सिटीजंस व्हेन दे ग्रो अप. इट कवर्स ऑल एडोलेसेंट बॉयज बोथ स्कूल गोइंग एंड आउट ऑफ स्कूल इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18. जितने भी यंग बॉयज है 11 to 18 के एज में, उनको जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा. How to respect women, how to respect ladies, how to respect your woman in your house and outside also. Very very important scheme. हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, स्पेशली युवा जो है, यू कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम. See that this program is still in force or not. If it is in force, please avail this scheme. Next, Sansad Adarsh Gram Yojana, that is member of parliament village development scheme. यहाँ पर आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द आपके जो भी एमपी है, दे हैव अडॉप्टेड योर विलेजेस एंड दे हैव डेवलप्ड योर विलेजेस. अगर नहीं है, आप सही जाके क्लिक करिए वेबसाइट में, आपका एमपी का इंफॉर्मेशन आएगा और कितना पेंडिंग पैसे हैं उनके पास आज भी. आप जाके एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए एमपी साहब को, सर आपके स्कीम में इतना पैसा बचा हुआ है, तो क्यों ना हम हमारे ग्रामीण प्रांत में एक रोड डाल दीजिए, नहीं तो एक कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, नहीं तो एक सोलर प्रोजेक्ट दीजिए हमारे को, नहीं तो जितने भी स्कूल है वहाँ पे पूरा स्कूल के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटरनेट कनेक्टिविटी दीजिए और सोलर पैनल डाल दीजिए. तो जितने भी पैसे वी कैन, यू हैव टू यूटिलाइज. और ये उनके खुद के पैसे नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसे है. इस देश में जितने भी लोग टैक्स देते हैं, उन टैक्स पेयर का मनी को हम डायरेक्शन दे रहे हैं. ये आपका हक बनता है. आप जाके आपके एमपी और एमएलए से पूछे, ठीक तरह से पूछे, पोलाइटली पूछिए. नेक्स्ट कम्स राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नेशनल हायर एजुकेशन, 2013 में स्टार्ट किया गया. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. हाउ? बाय कनेक्टिंग. हाउ? there's a particular plan of action that is going on. मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्पेशली ऑल द यूनिवर्सिटीज, स्पेशली ऑल द वाइस चांसलर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफ दैट एरिया. एनएसएस डिपार्टमेंट, आप तीन एक शक्ति बन सकते हो, 3 यूनिट. District collector, vice chancellor and NSS department together will form to develop how to this thing, do community engagement exercise. All the 3 people go, especially the students. हर एक दिन यूनिवर्सिटी में एक एक डिपार्टमेंट जाके एक एक विलेज चूज करेंगे, उस विलेज में जाके काम करेंगे, देखेंगे उसका प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूशंस लेकर आएंगे. सॉल्यूशंस आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रेजेंट करिए इन फ्रंट ऑफ वाइस चांसलर, देन दे विल डू द क्लियरेंस पार्ट ऑफ इट. हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जितने भी स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट जो देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो देता है, वो स्कीम क्या होता है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए. आपको आपके ग्रामीण प्रांत को 1 करोड़ दिया गया, तो फर्स्ट फेज में 1 करोड़ नहीं दिया जाएगा, 25 लाख देंगे. 25 लाख ठीक तरह से खर्च हुआ है कि नहीं, उसका आप यूसी देना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट. जब आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ठीक तरह से बताएगा, नेक्स्ट फेज ऑफ 25 लाख देंगे. यही लागू होता है हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, वर्ल्ड बैंक स्कीम के ऊपर. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है कि ठीक तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और यूसी दे रहे हैं कि नहीं. यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यूसी बोलते हैं. नेक्स्ट वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, सखी, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2013 में स्टार्ट किया गया था वुमेन के लिए. सेंटर टू प्रोवाइड मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एड एंड शेल्टर टू वुमेन हु फेस वायलेंस. जितने भी महिलाओं को, जितने भी घर में डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी वायलेंस का प्रॉब्लम दे हैव टू फेस इट, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज देयर. अभी तक है या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, आप वेबसाइट में जाइए, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है तो अप्लाई कर लीजिए. दिस इज फॉर ऑल द एनजीओस हु आर वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन वेलफेयर. and here some centers lack required facilities, it is already indicated. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी. ये 2013 में स्टार्ट किया गया. फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर एंड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हैज बीन डन. डायरेक्ट कैश आपको डायरेक्टली मिल रहा है. अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है, लिंकेज हो गया, तो आप डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे मिल जाएगा. और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आपके आधार कार्ड या बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक करेंगे, इमीडिएटली आपको एसएमएस भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंडिंग कितना मिला है, कितना पैसा मिला है. सो प्लीज इसको यूज कर लीजिए. बहुत अच्छी बात इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत हर एक रिमोट विलेज और ट्राइबल एरियाज में भी इंप्लीमेंट किया गया. नेक्स्ट स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जो
बच्चियां हैं, यंग गर्ल्स आर देयर 11 to 17 एज्ड, और स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा. दिस इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट, फॉर्म्ड इन 2010 by combining किशोरी शक्ति योजना. उस जमाने में उसको कहते हैं किशोरी शक्ति योजना, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, दैट इज क्लेम्स स्टार्ट इन राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स. ये किया, और सबला बोल के बोलते थे. देन इसका इंटीग्रेटेड आईसीडीएस बोल के चेंज किया गया द नेम सेकंड टाइम. अभी राइट नाउ दिस इज कमिंग अंडर द स्कीम सैग बोल के बोल रहे हैं. इट इज, आई थिंक इट शुड बी स्टिल अवेलेबल 2011 से, स्पेशली फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स. एडोलेसेंट गर्ल्स मतलब लड़कियां जो 11 साल से लेके 17 साल तक रहेंगी और 18 साल तक रहेंगी, उनके लिए पूरा पोषण के लिए दिया गया है. नेक्स्ट, पीएम आदर्श ग्राम योजना, मॉडल विलेज स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2010. और ये मॉडल विलेज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट में, जिधर भी शेड्यूल कास्ट मेजोरिटी ज्यादा है और शेड्यूल ट्राइब है, वहां पर ये पीएम आदर्श ग्राम योजना इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपको आपके एमपी से बात करना पड़ेगा. नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सेलेंस, पर्स, PURSE, पर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी MOST कर रहा है. 2009 में स्टार्ट किया गया. दिस इज बेसिकली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन साइंस एंड रिसर्च. यूनिवर्सिटीज दैट हैव बेनिफिटेड, कौन से यूनिवर्सिटीज ने बेनिफिट किया गया? कोचिन यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कोटायम, कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर, पंजाब यूनिवर्सिटी दिल्ली, जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड एमिटी यूनिवर्सिटी. All these things have taken this benefit of PERS. Now let's hope other universities take lead and start implementing and start requesting the central government so that they are also giving, they can also avail this particular scheme. Clean Energy Research Initiative, CERA, that is again done by same this thing MOST 2009, improving research capacity with regard to clean energy. So clean energy research is very, very important. I hope all the scientific departments in all the universities take and avail this particular scheme, sir. Please go online, check, and you can get all the infrastructure. Whatever funding you want, you can get it for your university and for your department, provided it is focused towards implementation of all these things is focused towards Indian rural areas. Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Program, Inspire program 2008 में स्टार्ट किया गया. Scholarships and internships for top science students, fellowships for pursuing PhD, research grants to researchers. ये पूरा रिसर्च ग्रांट्स, फेलोशिप्स, इंटर्नशिप पूरे दे रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है अंडर द इंस्पायर प्रोग्राम. ये 2008 में स्टार्ट किया गया. कृपा कर से आपसे सब निवेदन यही है, प्लीज आप हमारे जितने भी रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी आप इंस्पायर प्रोग्राम से फंडिंग ले रहे हैं इंडियन टैक्स पेयर का, कृपा करके आप इंडियन रूरल एरियाज पे फोकस पहले दीजिए. उसके बाद आप यूएस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, बट डोंट यूज इंडियन टैक्स पेयर्स मनी to create products for Coke, Pepsi or Microsoft. Do something to develop our Indian rural areas, Indian agriculture. Next, cognitive science research, this thing, again, this is coming under MOST only, to work towards scientific equality of life improvements for those with cognitive disorders. जितने भी हेल्थ के इश्यूज हैं उनके लिए काम करने के लिए पूरा रिसर्च फंडिंग है. Then come राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. Again, this is coming under same thing, Ministry of Health and Family Welfare. इंश्योरेंस 2008 में स्टार्ट किया गया. हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं, बीपीएल फैमिलीज, बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, डोमेस्टिक वर्कर्स, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी स्कीम वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, जितने भी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, सभी लोग इस स्कीम में इंश्योरेंस ले सकते हैं. ये स्कीम आज भी लागू है, एक बार चेक कर लीजिए वेबसाइट में. द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, दैट इज 2008 में स्टार्ट किया गया. क्लाइमेट के बारे में, इंप्रूविंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज आपको मालूम है, उसके बारे में ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं. पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, PMEGP, ये कब स्टार्ट हुआ? 2008 में. MSME एम्प्लॉयमेंट, aimed at providing employment and self-employment to unemployed people, implemented under खाद्य and village industries commission, KVIC के अंदर ये implement किया गया as a nodal agency. You can go to KVIC website, check there. अगर स्कीम अभी भी शुरू है, अप्लाई कर लीजिए. You can start this scheme, especially for all the NGOs and for the university guys.
ग्रामीण भंडारण योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है रूरल गोडाउन स्कीम। कब स्टार्ट हुआ? 2007। डिपार्टमेंट कौन सा है? एग्रीकल्चर। नाउ सब्स्यूम्ड अंडर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एएमआई, क्रिएशन ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी विद अलाइड फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस, प्रोसेस्ड फार्म प्रोड्यूस एंड एग्रीकल्चरल इनपुट्स, improve their marketability to promotion standardization। ये स्कीम का सिंपल है, अगर जो भी किसान जो भी खेती बाड़ी करता है, वो पूरा जो खेती बाड़ी करने के बाद जो लाता है, लेट से आप टमाटर उगाते हैं, टमाटर उगाने के बाद मार्केट यार्ड को लाते हैं, लगाते कहाँ है? स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ है? भंडारण की तरह स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पर आप जाके आपके एमपी से बात कर सकते हैं, एमएलए से बात कर सकते हैं कि आप उधर स्टोरेज, एक भंडारण का स्टोरेज यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये भंडारण यूनिट कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। इट्स नॉट बी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, और टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। सिर्फ कोल्ड स्टोरेज, अगर मैं जाके कोल्ड स्टोरेज यूनिट कश्मीर में करूंगा, इट इज यूजलेस, इट इज ऑलरेडी देयर। तो इसीलिए हम इसको कोल्ड स्टोरेज यूनिट नहीं बोलना चाहिए, हम बोलना चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज यूनिट्स। टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा सच दैट आपने जो भी टमाटर उगाया, आलू उगाया, जो भी है आपने किया है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। जब आपके बायर्स आएंगे, खरीदने वाले आएंगे, तो वो खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी का शेल्फ लाइफ बहुत कम रहता है, और इसके लिए आपको नॉमिनल फीस देना पड़ेगा। ये आप आपके एमपी और एमएलए से बात करके ये स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं आपके विलेज में। एंड हियर आई रिक्वेस्ट ऑल द यूनिवर्सिटी एनएसएस स्टूडेंट्स टू हेल्प दीज फार्मर्स, agriculturists, I'm sorry, to help all these agriculturists to start this temperature control storage units. That is one of my pet passions and my goal also. Any support from my side you want, definitely I'll be there. Then राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब स्टार्ट किया गया? 2007। एग्रीकल्चर क्या है? एलोकेशन इन 2022 में मोर देन 10,400 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड। दिस इंक्लूड्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर एक क्रॉप के लिए, वो क्रॉप चाहे रबी में हो चाहे खरीफ में हो, व्हेनेवर इट इज देयर, प्लीज इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्कीम। इस स्कीम के बारे में जानकारी ज्यादा प्राप्त कर लीजिए और ज्यादा शेयर करिए, हर एक किसान को यह जरूरत है ये स्कीम। Next, National Mission for Nanoscience and Technology. Nanoscience, again, it is totally for university related, focusing on totally on nanoscience technologies. Umbrella capacity building program can be started at all your departments. Scheme is available, funds are there. Go ahead and tap. I need not tell, you're all the best brains in the country. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी, मनरेगा एक्ट, रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट, ये सबको मालूम है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दिस कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Pooled Finance Development Fund Scheme, PFDF, this comes under Ministry of Urban Development, 2006 में start किया गया। This is under Urban Infrastructure Development. The scheme enables urban local bodies, ULBs, including small and medium-sized municipalities, to raise credit from the market of a sustainable basis. ये पैसे market से उठा सकते हैं, such that electrical bonds or electric bonds देने के बाद। So this is a complicated issue, urban infrastructure development के बारे में। With that, you have to sit with your concerned municipal commissioner. नेशनल क्रश स्कीम, सीएसएस, दैट इज अगेन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2006 में स्टार्ट किया गया। राजीव गांधी नेशनल क्रश स्कीम फॉर वर्किंग मदर्स, जो भी महिलाएं काम करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चों को देखभाल करने के लिए नेशनल क्रश के लिए अंदर लॉट ऑफ एनजीओस कैन स्टार्ट क्रश फॉर हेल्पिंग द वर्किंग मदर्स। जननी सुरक्षा योजना, दैट इज मैटरनिटी सेफ्टी स्कीम, दिस अगेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 2005 में स्टार्ट किया गया। इसके लिए मदर केयर के लिए वन टाइम कैश इंसेंटिव टू पुअर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एक्सीलरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। आशा वर्कर्स के लिए पूरा स्कीम है, अभी तक है या लागू नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे लागू किया गया, ये पूरा आशा वर्कर्स आपको बताएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन, ये कब स्टार्ट हो गया? 2005 में। हेल्थ, अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टू इम्प्रूव इंडियाज हेल्थ सेक्टर। फाइनेंशियल आउटले इन 2022 वाज अराउंड 28,859 करोड़, रफली 29,000 करोड़ खर्च किया गया। आपको मिला है कि नहीं, आप जरूर बताइए। Includes number of subsequent programs such as National Mental Health Program, National Blindness Control Program, National Vector-Borne Disease Control Program. ये पूरे programs में merge करके this has come under the national program. Then livestock insurance, एक अब 2005 में Agriculture Department initiated as a pilot in 2005 and scaled up to all the districts in 2014 तक पूरे districts में cover किया गया। Livestock is जितने भी सारे poultry उसके लिए काम करते हैं, सबके लिए insurance for cattle and attaining qualitative improvement in livestock and their products.
स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट स्कीम SARDP दैट इज फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए, दैट इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए पूरा फोकस किया गया नॉर्थ ईस्ट एरिया में पूरा रोड्स डालने के लिए, कनेक्टिविटी डालने के लिए. हियर वी शुड रियली अप्रिशिएट दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स, प्रीवियस गवर्नमेंट एंड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू डेवलप द रोड्स इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट होता है 8 स्टेट्स, और 8 स्टेट्स उन सबको हम आज 7 सिस्टर्स ऑफ द ईस्ट नहीं बोलते, 8 स्टेट्स बोलते हैं, उसको कहते हैं हम अष्टलक्ष्मी. आप सभी लोग जानते हैं वो 8 स्टेट्स कौन है. वो पूरा दे आर वेरी वेरी हैप्पी विद द रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग टू देयर एरिया, कनेक्टिविटी बढ़ रहा है. उनके लोगों पे हम वॉट एवर सपोर्ट वी कैन गिव टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्ट, लेट अस गिव इट टू देम. नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दैट इज कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल. ये कब स्टार्ट हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है. इस वाज स्टार्टेड इन 2004. Education Department. Education facilities residential schools for girls belonging to SC, ST and OBC minority communities and family below the poverty BPL, that is below the poverty line, backward blocks. दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस के इसके अंदर आता है. 2003 में स्टार्ट किया गया. ओरिजिनल फॉर्म वाज इन 1919 स्कीम टू प्रमोट वॉलंटरी एक्शन for persons with disabilities with the aim to implementing Persons with Disabilities Act 1995. ये पूरा जो विकलांग लोग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनके लिए ये पूरा स्कीम अवेलेबल है, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम. नेक्स्ट आता है पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पीएम हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम. दिस इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. 2003 में स्टार्ट किया गया. हेल्थ के लिए improving distribution accessibility of health services, new aims will be considered under the scheme. New aims will be constructed. I hope a lot of new aims has come. That is All India Institute of Medical Sciences. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यूनिवर्सल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये किसने इंप्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. कब शुरू हुआ? 2001 में. किसके लिए? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए. प्रोवाइडिंग एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी अलोंगसाइड क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स इन रूरल एरियाज. ग्रामीण एरियाज में जितने भी हैं उधर के एरिया को फूड सिक्योरिटी देने के लिए एंड स्पेशली उधर के जो भी एसेट्स है, जितने भी क्रॉप्स हो रहे हैं, उनके लिए डायरेक्शन देने के लिए. हाउ टू मेक इट यूजफुल फॉर द एवरीबडी, how they can take the crops which has been produced in one area to the another area. Next, Swart Grah scheme, that is Swart Self Reliance scheme, एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2001 में स्टार्ट किया गया फीमेल वेलफेयर के लिए फॉर वुमेन इन टफ सर्कमस्टांसेस. दिस इज वेरी जेनेरिक, हाउ इट कैन बी मेड स्पेसिफिक लाइज विथ यू. पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम विलेज रोड स्कीम, ये कब स्टार्ट हुआ? 2000 में स्टार्ट हुआ. किससे? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से. गुड ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड्स टू ऑल द विलेजेस एंड दिस हैज बीन सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. देन अंत्योदय अन्न योजना स्कीम, AAY अंत्योदय फूड स्कीम, अगेन ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है. कब स्टार्ट हुआ? 2000 में स्टार्ट हुआ. किसके लिए? भूख मिटाने के लिए, हंगर के लिए. अंडर द स्कीम 1 crore of poorest of the poor people below the poverty line families were covered and public distribution system जो भी है रेशन कार्ड दिया गया और they can avail rice and food and other items there for their families. Next scheme is Kishore Vaigyanik Pratyoshan Yojana, that is Young Scientist Incentive Plan, very important for Ministry of Scientific Industry, this thing, Technology. 1999 में शुरू किया गया. किसके लिए? साइंस के लिए. नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक अप रिसर्च कैरियर्स इन द एरिया ऑफ बेसिक साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन. एग्जाम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. You are interested to become a research, take up research in all the any departments of science, engineering and medicine, avail this scheme. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया 1995. पेंशन स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेंशनर्स, विडोज एंड अदर टारगेट कैटेगरीज. नेक्स्ट कम्स MP लैड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम. ये कब शुरू हो गया? 1993 में. किसके लिए? जितने भी MPs है, हर एक MP को हर एक साल के लिए उनको 5 करोड़ दिया जाता है. अगर आपके MP है, उनका नाम बताइए. वेरी गुड, नाम मालूम नहीं है, एक्सेलेंट. आपके जो MP है उनको 5 करोड़ दिया जाएगा हर साल के लिए. अगर वो 5 साल तक रहते हैं उनको मिलता है 25 करोड़. जहां तक मुझे मालूम है जितने भी स्टेट के MLA है उनके लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत उनको 1 करोड़ मिलता है. अगर आपके एरिया में समझ लीजिए 5 साल वो MLA और MP रहते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो कम से कम 30 करोड़ रहेगा.
30 करोड़ जब आपके बजट में है तो क्यों ना हम यूज करें अपने स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए, ड्रेनेज लगाने के लिए, रोड्स डालने के लिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बेटर करने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। ये सभी स्कीम्स को आपको ये पूरा अवेयरनेस क्यों दिया जा रहा है कि ये आपका मनी है, ये आपका पैसा है, ये आपका हक बनता है। आप जाके पूछिए आपके एमपी और एमएलए से। हम आप उनके पर्सनल प्रॉपर्टी टच नहीं कर रहे हैं। ये इंडियन पार्लियामेंट देती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अगर ग्रामीण प्रांत में जो किसान खेती बाड़ी करते किसान वो पूछ नहीं सकते, अगर आप तो कर सकते हैं। जो युवा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एनएसएस डिपार्टमेंट में है, प्लीज कंसिडर दिस वेरी सीरियसली। नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन, इससे पहले बताया था, 1992 में स्टार्ट किया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, स्पेशली फॉर गंगापुत्र फिशरमैन कम्युनिटी। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिशरमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कम्युनिटी हॉल फॉर रिक्रिएशन एंड कॉमन वर्किंग प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्यूब वेल्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये पूरे के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट भी है, प्लीज कॉन्टैक्ट देम। नेशनल स्कीम सोशल असिस्टेंस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में स्टार्ट किया कब? 1995 में। पेंशन है, पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। ये पेंशन है फॉर पीपल हु आर अनेबल टू, पेंशन मिलता है स्पेशली पीपल, स्पेशली इन रूरल एरियाज हु आर अनएम्प्लॉयड। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, there has been started in 1997. Education Department setting up of new Ekalavya model residential schools and improving existing ones, improvement of enrollment. जितने भी ट्राइबल एरियाज में है, जितने भी बीपीएल फैमिलीज है, they can come and make their children join in this Ekalavya residential schools. Not only them, anybody can make them join in that particular schools. Go and check please personally. Next is National Tuberculosis Elimination Program, NTEP. ये tuberculosis को eliminate करने के लिए 1997 में स्टार्ट किया गया। अभी भी थोड़ी जगह में है, अगर है कि नहीं मुझे तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया कब? 1997 में। इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर द इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स डिफॉल्टर्स टू डिस्क्लोज देयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम एट द प्रिवेलिंग टैक्स रेट्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इज यू हैव टू सिट विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आपके जितने भी फाइनेंस एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं, एक बार उनसे टच कर लीजिए ये स्कीम इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशियरी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आता है। द इंफ्रास्ट्रक्चर 1993 से स्टार्ट किया। दिस इंक्लूड्स रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, डिजिटल फैसिलिटीज फॉर ग्राम न्यायालय। जितने भी ग्रामीण प्रांत में न्यायालय है उनको फैसिलिटीज दिया गया, बजट है। आपके ग्रामीण प्रांत में न्यायालय है, लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, उनको डिजिटल फैसिलिटीज है। आप जाके पूछ सकते हैं आपके हाई कोर्ट के जज को, या आपके जितने भी आपके आसपास के जितने भी वकील बाबू है, वकील साहब है, उनसे बात कर लीजिए। ये है स्कीम है, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं नहीं, एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन, फिर आपके वकील साहब को पूछिए ये स्कीम है कि नहीं, अवेल कर सकते हैं कि नहीं। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स, दैट इज, ये कब स्टार्ट होगा? 1987 में। चाइल्ड लेबर, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इन सबको बंद करने के लिए ये प्रोजेक्ट नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया 1987 में। अभी पूरे पूरे 250 डिस्ट्रिक्ट और 21 स्टेट्स में है ये पूरा। यहाँ पर छोटे बच्चों को काम किया। वी विल नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क, दैट इज एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। जितने भी बच्चे जो 14 साल के नीचे हैं उनको काम नहीं देना चाहिए, और कोई भी काम देता है उनको police will take action. So please be careful before you employ children who are underaged. Next, interlinking of rivers, very important. That is again 1980 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वाटर डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जहाँ तक स्टार्ट किया आई एम श्योर वो वहीं पर है। अगर एक एरिया भारत के नॉर्थ एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है, साउथ में नहीं है, या ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, व्हाई कांट वी लिंक ऑल द रिवर्स? We have to link all the rivers. यही एपीजे कलाम जी के विजन यही था, let us link all the rivers. जहां पर ज्यादा पानी है, we'll send it to the area where there is no water at all. इसके लिए होता है कॉमन पॉलिसी, पब्लिक विल होता है। अगर पब्लिक पूरा डिमांड करेंगे, ये जितने भी लोग एमएलए एमपी है ये काम करेंगे। लेट अस लिंक ऑल द रिवर्स।
नेक्स्ट स्कीम यूरिया सब्सिडी, ये कब से है? 1977। आई रिपीट, ये कब से है? 1977 से है सब्सिडी देना है। फर्स्ट यूरिया सब्सिडी स्कीम वाज इन 1977। इट इज अ रिटेंशन प्राइस सब्सिडी स्कीम। सो पूरा ये कब पहले से ही है, ये पूरा परसेंटेज ऑफ जीडीपी के ऊपर दिया जाता है कि कैसे देना चाहिए। ये पूरा आज भी 2022-23 में भी फाइनेंशियल आउटले में यूरिया सब्सिडी स्कीम है। पूछ लीजिए, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर यूजिंग इट, फिर भी एक बार पूछ लीजिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इससे पहले मैंने बात किया था आईसीडीएस, ये कब स्टार्ट हुआ? 1975 से ये लागू है, चाइल्ड एंड मदर केयर के। द स्कीम एम्स टू टैकल मैल न्यूट्रिशन health problems in children below 6 years of age and their mothers by providing cash incentives, conditional आंगनबाड़ी सेंटर्स। इसको और डेवलप करना चाहिए आंगनबाड़ी सेंटर्स को, उधर के वर्कर्स को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। फूड सब्सिडी प्रोग्राम, ये कब शुरू हुआ? 1972 में। सब्सिडी क्या है? 1972 द टोटल सब्सिडी वाज 117 crores। 1980 में बन गया 662 crores और 2022 में फाइनेंशियल आउटलेट 2.0 लाख crores। इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है गवर्नमेंट। कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार होता है पब्लिक के लिए। ये पूरे खर्च करे, कब से खर्च कर रहे हैं? 1972 से लेके 50 साल। अभी तक हुआ नहीं हुआ? ठीक हुआ? कैसे हुआ? ठीक नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? National Service Scheme (NSS), that is again public service personality development through social and community service, very very important to be implemented in all the universities। and NSS department को जो भी लोग neglect करते हैं, please NSS department you come into the forefront, take the lead। if you want India to change, NSS is the right department to take lead। and all the people who are working in NSS department, take your role seriously, believe in yourself। you're working for the country, you're working for the state, you're working for the community। if you develop your own nearby university area, it's enough। if every university starts adopting its nearby villages, India is developed। we are no longer to be a developed country or developing country, we can be a developed nation faster, provided we are honest and integrated and transparent। big question mark। now what are the central government schemes का list information बोल दिया है। इसका evaluation problems क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन ऑफिस DMEO, ये नीति आयोग के अंदर आता है। एवेल्यूशन प्रॉब्लम्स है, वो ये खुद बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री सच एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कैन शो इमीडिएट फिजिकल outcomes of its schemes, whereas health related schemes in certain cases there is no output to show for, it is highlighted there। रोड डाला है नहीं मालूम हो जाएगा, पैसे मिला है कि नहीं मालूम है, वो कैसे रोड डाले बात की बात है। रोड तो डाले दिख रहा है ना, बट हेल्थ स्कीम में कितने लोगों को आपने दिया गया। बट इधर देखिए, जब कोरोना आया था पूरा कंट्री, पूरा एंटायर पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को हमने वैक्सीन डाला है। दैट वी हैव टू अप्रिशिएट द ग्रेट एफर्ट। द काइंड ऑफ रेस्पोंडेंट बायस इट्स लाइज इन is being addressed by Ministry of Statistics and CAG, Comptroller and Auditor General of India, are assessing every money जो आप हम खर्चा कर रहे हैं CAG डिपार्टमेंट। और CAG डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट पर्सन लगाना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। CAG department should have its own internal structure so that they can be free of all the issues। let us go to the next slide। effectiveness, जितने भी स्कीम्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुए कि नहीं, गवर्नमेंट को CAG बताता है और सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस करता है हाउ दे आर डूइंग इट एवरीथिंग। हियर a shortage of both schools and teachers since their inception, flagship welfare schemes of the present government such as Namami Gange and Ayushman Bharat have been sanctioned for more than what they have spent। A key issue is identifying who to benefit scheme is how। in 2017 Comptroller and Auditor General 2017 में 2017 में CAG ने बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो हर एक स्टेट में हर एक कल्चर अलग है, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये CAG ने बताया है, मैंने नहीं। अवेयरनेस, हियर कम्स अ मेजर इशू। ये वीडियो किया गया किस लिए? ज्यादातर लोग इस देश में जितने भी सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, यंग्स यूथ है, यूनिवर्सिटी हेड्स है, NSS डिपार्टमेंट्स है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इतने सारे स्कीम्स है क्या, अभी भी लागू है, कितने पैसे खर्च कर रहे, कैसे अवेल कर सकते हैं, जितने सारे NGOs है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर इस देश में 100 NGOs है, आई एम श्योर एक 10, अगर मैं बोलूंगा 10% लोगों को मालूम है ये स्कीम्स, 90% दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस स्कीम्स। दैट इज व्हाई दिस वीडियो हैज बीन मेड। जितने भी NGOs जो है जो काम कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है स्कीम के बारे में, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं आप सभी के लिए।
ये पूरा मैंने इंटरनेट से लिया गया आपको शेयर करने के लिए अंडर सिंगल पेज, दैट्स इट। कुछ ज्यादा इन्फो, ये पूरा मैंने पहले स्लाइड में बता दिया डिस्क्लेमर, ये पूरा इंटरनेट से लिया गया, आपको शेयर करो जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और जितने भी स्कीम्स आपने अभी तक सुना है उन सब स्कीम्स के बारे में आपको, जितने भी एनजीओ है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जितने भी यूनिवर्सिटी एनएसएस डिपार्टमेंट, वाइस चांसलर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, मैं एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ विनम्रता पूर्वक कि हफ्ते में एक दिन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए डिवोट कीजिए, थोड़ा फंडिंग एलोकेट कीजिए। हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो पूरा जाके अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, उनको भी फंड्स दीजिए, एवेल्युएट करिए हाउ दे आर इम्प्लीमेंटिंग, दे विल आल्सो बी एक्साइटेड। इन 2021-2020 में गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने दे हैव लॉन्च स्वयंपूर्ण गोवा which involves government official making eligible beneficiaries aware of the schemes and how to avail them। बस यही चाहिए देश पूरा, सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ गोवा ही क्यों, क्यों ना देश भर में जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स है, व्हाई आर दे नॉट इंप्लीमेंटिंग इट, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ नॉट इन इंडिया नॉट इंप्लीमेंटिंग द अवेयरनेस प्रोग्राम्स। Everybody has to do it, every university has to do it। First important thing is to create awareness programs of all the central government schemes। वो किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कौन से सक्सेसफुल है, कौन से रेप्लिकेट कर सकते हैं, कौन से फेलियर है, अगर फेलियर है क्यों फेलियर है। लेट अस अंडरस्टैंड, टेक द फीडबैक फ्रॉम द grassroots levels of the different parts of the country। let us learn from each part, each corner of the country। that is very very important my dear friends। rationalization, the rationalization में 2020 में there are 704 CS schemes and most of them there are 360 CSS schemes है। so that is why it is very very important my dear friend, please understand हर एक स्कीम इंपॉर्टेंट है, हर एक स्कीम को दूसरा स्कीम से के साथ पर्ज भी कर सकते हैं, मगर स्कीम बगैर ये टैक्स पेयर का जितना भी पैसा जाता है, देश भर में जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे खर्च करता है ये हम सब पर निर्भर होता है। हर एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होता है इस देश में, एनएसएस डिपार्टमेंट, everybody, NGOs, everybody has worked together। we are all Indians first। वंदे मातरम। प्लीज टेक दिस वीडियो सीरियसली, अगर आपको पसंद आया प्लीज शेयर इट विद सो मेनी पीपल whomsoever you like। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करिए, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दिया हृदयपूर्वक से मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारा एक ही है, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका लिंक मैंने दिया है लास्ट इधर स्लाइड में, और यह है मेरा कंपनी S9 कंसल्टिंग, मेरा नाम अश्विन कुमार है, मैं रहता हूँ हैदराबाद में। मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, कैरियर काउंसलिंग, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडक्शन, केयर इंश्योरेंस, LIC इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस का मैं मार्केटिंग एजेंट हूँ। ई लिटरेसी और ई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देता हूँ। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और NGO का सर्विसेज जितना भी मुझसे मैं दे सकता हूँ मैं वो देता हूँ। स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए वो भी मैं गाइडेंस देता हूँ। और जितने भी सोशल सर्विस अवेयरनेस कैंपेन जैसा ये है, इस वीडियो के बारे में मैंने बनाया है, ये सब आपके लिए समर्पित है। शायद आपको पसंद आया हो, अगर कुछ गलतियां हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए।